Hello everyone, welcome to the Kumar Academy. I hope you all are fit and fine at your home and doing well. So in today's video we are going to discuss about class 9 science NCERT chapter number 1, that is matter in our surrounding. This is the very first chapter of chemistry, as you all know. In our previous two videos, part 1 and part 2, we have discussed about the introduction of the chapter in the part 1, and after that we have discussed about the states of matter and their characteristics in the second video. So in this video we are going to discuss that how can we convert the matter from one state to another. That means we are going to deal with the topic called change of state in this video, and what are the different processes involving in the change of state. So let's discuss all the things in detail, and please watch the complete video so that everything will be clear to you in detail. So without any further delay, let's get started with the first concept, change of states of matter. As you all know, matter is existing in three states like solid state, liquid state and the gaseous state. So is there any possibility we can convert one form of matter into another, like solid form or solid state can be converted into the liquid form? Yes, it's a possibility, and liquid form can also be converted into the gaseous form. So there is a possibility of converting one state into another, and this process of conversion from one state of matter into another is called as change of state. क्या होता है चेंज ऑफ स्टेट? किसी भी मैटर को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज करना, उसको हम बोलते हैं चेंज ऑफ स्टेट. सो वी हैव रिटन सम डेफिनेशन ओवर हियर. द कन्वर्जन ऑफ मैटर फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट इज कॉल्ड एज चेंज ऑफ स्टेट. Like we have taken some example over here, conversion of ice into water. So ice is what? Ice is the solid form of the water, and liquid water is what? Water is the liquid form. So there is a conversion going on. That's why it is an example of change of state. There are many examples. Like if you are having iron, then what you can do? You can simply convert it into the molten form. आप उसको melt कर सकते हो. बहुत high temperature पे आप क्या करोगे? Heat करोगे तो वो melt होना start हो जाएगा. So there is a possibility that we can change the state from one state to change state of matter from one state to another. Now the question arises, how can we do this process? What are the steps involved? What are the conditions that how can we change the state of matter? ऐसी क्या conditions हो सकती हैं कि जिसकी help से हम matter की state को change कर दें, right? So there can be some conditions. So I have written two methods by which, by using these two methods, we can simply convert the one form of matter into the another. So first method we have written over here, by changing the temperature. What it means? It means if you want to convert one form of matter into the another form, then simply if you are changing the temperature, then there will be conversion going on. Next is by changing the pressure. Pressure, as you all know. So if you are changing the condition of pressure, then there is a possibility that matter can change from one state to another, right? So now we are going to discuss that how the change of state goes on from solid state to liquid state and the liquid state to gaseous state in detail. अभी हमें क्या करना है कि हमने क्या डिस्कस किया है कि चेंज ऑफ स्टेट होता क्या है, बता दिया मैंने आपको. सिंपल, किसी भी मैटर की फॉर्म को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज करना, सॉलिड फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में चेंज करना, लिक्विड फॉर्म से गैसेस फॉर्म में चेंज करना, उसको हम क्या बोलते हैं? कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स. नेक्स्ट, अभी कैसे कर सकते हैं कन्वर्जन? दो कंडीशन है आपके पास, या आप टेम्परेचर चेंज कर दोगे या तो आप प्रेशर की कंडीशन को चेंज कर दोगे. सो ये दो ही मेथड्स हैं जिनको आप चेंज कर दोगे, या तो आप दोनों को एक साथ भी कर सकते हो बाय चेंजिंग टेम्परेचर एंड टेम्परेचर बोथ. दोनों को एक साथ चेंज करेंगे तो हमारी स्टेट ऑफ मैटर कन्वर्ट हो जाएगी एक फॉर्म टू दूसरी फॉर्म में, राइट? सो प्लीज़ पॉज द वीडियो टू मेक अ नोट ऑफ इट. आइदर यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट एंड वी आर गोइंग टू मूव ऑन द नेक्स्ट टॉपिक. जस्ट वेट. I think you have taken the screenshot or pause the video to make a note of it. Just wait. So next is explanation of conversion of state from one state to another on the basis of molecular theory. What exactly happens? क्या होता है, कैसे चेंज होती हैं, वो सब इंटरनली पार्ट हम डील करने वाले हैं डिटेल में. ओके, सो नेक्स्ट हेडिंग इज explanation of change of state from solids to liquids and further on in gases.
Okay, so now what we are going to discuss, we are going to deal that how the conversion happens, what is the internal phenomena that is happening during the change of state. Exactly क्या होता है जब आप किसी भी state को change करते हो, ठीक है, कैसे मॉलिक्यूल्स में क्या चेंज आता है, अंदर जो मॉलिक्यूल्स पार्टिकल्स होते हैं उनमें क्या चेंज आता है, अरेंजमेंट में कोई चेंज होता है, वो सब इंटरनल पोर्शन डील करने वाले हैं. वेरी सिंपल. ओके, सो आई एम रिटनिंग सम थिंग्स ऑन द बोर्ड लाइक द सॉलिड्स, प्लीज राइट विद मी, द सॉलिड्स हैव स्ट्रॉन्ग intermolecular force, just wait, the solids have strong intermolecular force, just wait. Okay, I am writing something and after that, so now we are going to discuss, just wait, now we are going to discuss that how the process of conversion of state happens inside the solid, liquid and gas, and what exactly happened to the molecules whenever we are heating the solid substance. I have written over here, the solids have strong intermolecular force. As you all know, solids have very strong intermolecular force and the constituent particles are very tightly packed. जो solids होते हैं उसके अंदर जो molecules होते हैं बहुत closely packed होते हैं. In the previous video I have told you that structure molecular arrangement of the solids, उसमें मैंने आपको बताया भी था कि जो हमारे molecules होते हैं बहुत closely packed होते हैं. That's why they have a fixed shape. But whenever we are heating the solid substances, then the kinetic energy of the molecules get increases and at the stage comes whenever they are able to overcome the strong forces. आपको क्या करना है, जब आप किसी solid को heat करोगे तो उसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी और एक टाइम ऐसा आएगा कि वो स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस को ओवरकम कर जाएंगे. जैसे ही वो फोर्स को ब्रेक करेंगे वो फ्री हो जाएंगे मूव होने के लिए और उनके मॉलिक्यूल्स थोड़े से दूर दूर हो जाएंगे. एट दैट टाइम द सॉलिड स्टार्ट्स कन्वर्टिंग इनटू द लिक्विड फॉर्म. ठीक है, क्लियर हो गया. नेक्स्ट हम क्या करते हैं, अगर लिक्विड को फर्दर हीट करते हैं, फर्दर हीट करेंगे, देन व्हाट हैपेंस, लिक्विड मॉलिक्यूल्स और द पार्टिकल्स गेन मोर काइनेटिक एनर्जी. उनके जो पार्टिकल्स होंगे वो थोड़ा सी और उनको एनर्जी मिलेगी अगर आप उनको फर्दर हीट करते रहोगे. और उनको एनर्जी मिलने के बाद क्या होगा, वो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो लिक्विड की बाउंड्री को भी इतनी ज़्यादा एनर्जी हो जाएगी उनकी कि वो लिक्विड की बाउंड्रीज को भी ओवरकम कर देंगे. जैसे ही वो लिक्विड की बाउंड्रीज को ओवरकम करेंगे तो वो सिंपली गैसेज में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे. ये मैंने बोर्ड पर लिखा भी है. ओके, the solid state have strong intermolecular force and the constituents are closely packed. उनके जो particles होते हैं, constituent means the particles by which solid is made up of, they are known as constituent, are closely packed. When solid is heated, the kinetic energy of the particles increases. जब भी आप किसी भी चीज़ को हीट करोगे उनको क्या मिल रही है, एक्स्ट्रा पार्ट ऑफ एनर्जी मिल रही है, तो वो हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे और एब्जॉर्ब करने के बाद उनकी जो एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी जो होती है मोशन की वजह से वो ज़्यादा हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी. ठीक है, एंड एट द स्टेज कम्स द पार्टिकल आर एबल टू ओवरकम स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिकुलर फोर्सेज. एक टाइम ऐसा आएगा कि जो हमारे पार्टिकल्स होंगे सॉलिड्स के, वो जो फोर्स होता है उनके बीच का स्ट्रॉन्ग फोर्स जो होता है सॉलिड्स में, उसको ओवरकम कर देंगे. मैं उसको मतलब उससे बाहर निकल जाएंगे और जैसे ही वो ओवरकम करेंगे फोर्सेस को तो क्या होगा, वो दूर दूर हो जाएंगे. दैट मीन्स दे विल गो फार अपार्ट एंड एट दैट टाइम द सॉलिड स्टार्ट्स कन्वर्टिंग इनटू द लिक्विड फॉर्म. उस टाइम पे क्या होगा, सॉलिड हमारा लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा. नाउ इफ़ वी आर फर्दर हीटिंग द लिक्विड, अगर आप फिर से लिक्विड को कंटिन्यूसली हीट कर रहे हो, देन द मॉलिक्यूल्स ऑफ दैट लिक्विड गेन मोर काइनेटिक एनर्जी. उनको और ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी मिलेगी और काइनेटिक एनर्जी मिलने के बाद क्या होगा, वो क्या करेंगे, एक टाइम ऐसा आएगा उनकी काइनेटिक एनर्जी इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि लिक्विड की बाउंड्रीज को भी क्रॉस कर देंगे. जैसे ही लिक्विड की बाउंड्री को क्रॉस करेंगे, दे विल बी कन्वर्टिंग इनटू द गैसेज स्टेट. वो कौन से स्टेट में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे, गैसेज स्टेट में. क्लियर है ये कॉन्सेप्ट, हाउ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स गोज ऑन फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड टू गैसेज ऑन हीटिंग. अगर आप सॉलिड को हीट करते हो तो क्या होता है, फिर वो लिक्विड में कैसे कन्वर्ट होता है और वो गैसेज स्टेट में कैसे एंटर होता है, ये मैंने आपको सारा कुछ बताया है यहाँ पे. ओके, सो प्लीज़ टेक द स्क्रीनशॉट. दिस इज द वेरी वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट
That's why I have written on the board. Otherwise there is no need to write such long definition on the board. बहुत ज़्यादा बड़ी definitions लिखने की requirement नहीं होती है, but ये important concept है. That's why I have written on the board. Please pause the video to make a note of it. Either you can take the screenshot. Okay, so just wait. I am trying to explain you these with the help of schematic diagram. Okay, now what I am going to do, I am going to explain this point with the help of diagram also. Now as you know, solids gets converted into the gases. Okay, solids get converted into the liquids on heating. Just wait. Liquids get converted into the gases on heating. Very simple. And these processes are reversible. That's why I have put the reversible sign over here. This is the symbol. This is okay, and this like this. Whatever the symbol, this is read as reversible. इस वाले सिंबल को हम क्या पढ़ते हैं? रिवर्सिबल. रिवर्सिबल का मतलब होता है कि सॉलिड से लिक्विड में भी आप जा सकते हो और लिक्विड को आप सॉलिड में भी कन्वर्ट कर सकते हो. ओके, दिस इज द मीनिंग ऑफ रिवर्सिबल साइन. वी हैव पुट द रिवर्सिबल साइन ओवर हियर एज वेल. That means liquid can be converted into the gaseous form and the gases can be also converted into the liquid form. So just wait. Okay, now let's understand this concept with the help of schematic diagram. यहाँ पे क्या हो रहा है? As you all know, in the solid the molecules are very tightly packed. You can just do like this. Okay. In this, molecules are very closely packed. This is the molecular arrangement in the solids. Solids में क्या होता है? जो molecules होते हैं बहुत tightly packed होते हैं. अब ये solids हैं, ठीक है. इसको आप heat करोगे. क्या करोगे? जब आप इसे heat करोगे on heating, तो क्या होगा? मैंने आपको बताया था, whenever जब भी आप solid particles को heat करते हो, solid material को heat करते हो, तो जो heat होती है वो molecules को वो energy molecules absorb करते हैं और उनकी kinetic energy क्या हो जाती है? Increase हो जाती है. क्यों होती है उनकी काइनेटिक एनर्जी? मैंने आपको बताया था कि जब भी सॉलिड जो भी आपके पार्टिकल्स होते हैं दे कैन बी मूव थ्रू आउट द विद इन द बाउंड्री ऑफ द सॉलिड और विद इन द बाउंड्री ऑफ द लिक्विड. मैंने आपको जब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स पढ़ाया था उसमें लास्ट पॉइंट था दैट द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर इन द स्टेट ऑफ कंटिन्यूअस मोशन. मतलब जो पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं. सॉलिड्स में मैंने आपको बताया था कि वो कौन सा मोशन होता है उनके अंदर वाइब्रेटरी मोशन होता है. तो वाइब्रेटरी मोशन की वजह से उनमें कौन सी एनर्जी होगी? काइनेटिक एनर्जी. और जैसे ही आप उसको हीट करोगे तो एक्स्ट्रा एनर्जी इनको मिलेगी, तो जो भी इनकी काइनेटिक एनर्जी होगी वो इंक्रीज हो जाएगी, राइट. एंड आफ्टर दैट व्हाट विल हैपन? एंड दीज मॉलिक्यूल हैव द मोर काइनेटिक एनर्जी एंड दे विल बी, अगर काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी तो क्या करेंगे? फिर मूव करना स्टार्ट कर देंगे. और ये जो पास हैं दे विल बी बिकम लिटिल फार्थर, थोड़े से दूर हो जाएंगे लाइक दिस. दिस इज द यू कैन से लिक्विड स्टेट. ओके, सो व्हाट हैपेंस व्हेनेवर वी आर हीटिंग द सॉलिड सब्सटेंस? द मॉलिक्यूल्स गेन काइनेटिक एनर्जी एंड द स्टेज कम्स व्हेनेवर दे आर एबल टू ओवरकम द स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस. यहाँ पे फोर्स बहुत स्ट्रॉन्ग है इसलिए प्रॉपर अरेंजमेंट में फिक्स्ड है, प्रॉपर पोजिशन में फिक्स्ड है. बट जब आप उनको हीट करते हो तो इनकी एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से ये फोर्स को ओवरकम कर जाते हैं, मतलब फोर्स से बाहर निकल जाते हैं, तो ये कहीं भी जा सकते हैं, ठीक है. पर एक बाउंड्री के अंदर ही रहेंगे. इनको हीट करने पे ये लिक्विड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं. और फिर आप इन्हें फर्दर हीट करोगे लिक्विड मॉलिक्यूल्स को, ये लिक्विड्स को, देन व्हाट हैपेंस? देयर इज अ स्टेज कम्स कॉल्ड गैसियस स्टेट. तो उनके जो मॉलिक्यूल्स होंगे दे विल बी गेनिंग मोर एनर्जी. व्हाट विल बी देयर? दे विल गेन मोर एनर्जी एंड they are able to overcome the boundary of the liquid surface. वो क्या करेंगे? लिक्विड की बाउंड्री से बाहर निकल जाएंगे, ठीक है. तो वो कौन से स्टेट में चले जाएंगे? गैसियस स्टेट में. सॉरी. देन दे विल बी कन्वर्टेड इनटू द गैसियस स्टेट. दिस इज द होल फिनोमेना हाउ द चेंज ऑफ स्टेट हैपेंस इनसाइड द मैटर. कैसे चेंज होता है, कैसे नहीं होता है, पूरा एक्सप्लेनेशन अभी किया है हमने, ठीक है. क्लियर हो गया होगा चीज़ें. डायग्राम भी मैंने आपको ड्रॉ कर दिया है जिससे कि आपको क्लियर हो जाए चीज़ें. ओके, सो लेट्स रिकॉल वंस अगेन. बहुत सिंपल है, बहुत इजी है एंड वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ दिस.
any of the teacher, any of the there can be a question in the book that explain how the states of matter changes from the one form into another. आपको बताना पड़ेगा कि कैसे चेंजेस होते हैं, क्या होता है एग्जैक्टली तो कुछ नहीं होता है। मैंने आपको बताया सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं, मतलब क्लोजली पैक्ड होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि इनके बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है। बट ये क्या करते हैं? वाइब्रेटरी मोशन परफॉर्म करते हैं। कौन सा मोशन परफॉर्म करते हैं? वाइब्रेटरी मोशन की वजह से इनके अंदर क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी होती है। जो भी मॉलिक्यूल, जो भी चीज़ें मोशन में होती हैं, उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी पहले से ही स्टोर हो जाती है। इनको आप फर्दर हीट करोगे तो ये इनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। एक टाइम ऐसा आएगा कि इनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाएगी और ये जो फोर्स है वो वीक हो जाएगा। इनकी काइनेटिक एनर्जी इनको ओवरकम कर जाएगी, फोर्सेस को ओवरकम कर जाएगी। फोर्सेस ओवरकम को होने की वजह से इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं दे आर फ्री। नाउ द फोर्स इज नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू कीप देम एट अ फिक्स पोजीशन। इतना स्ट्रॉन्ग फोर्स नहीं होगा कि उनको एक पोजीशन पे रख पाए। फोर्स वीक हो जाएगा तो वो कहीं भी आराम से थोड़े से दूर दूर होकर मूव करना स्टार्ट कर देंगे। बट अगर आप उसको फर्दर, तो उस टाइम पे क्या होगा? हमारा सॉलिड लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर आप लिक्विड को फर्दर हीट करोगे देन द मॉलिक्यूल्स विल गेट मोर काइनेटिक एनर्जी, उनको और थोड़ी सी काइनेटिक एनर्जी मिलेगी। और एक टाइम फिर ऐसा आएगा, हीट करते जाओगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो लिक्विड की बाउंड्रीज को भी क्या कर जाएंगे? फ्रीली, लिक्विड की बाउंड्री से भी फ्री आउट चले जाएंगे। तो जैसे वो लिक्विड की बाउंड्री से आउट जाएंगे तो आपका वो जो सब्सटेंस होगा वो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। दिस इज द होल प्रोसेस दैट हाउ द स्टेट्स कन्वर्ट्स फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। एंड नॉर्मल कन्वर्जन इज, नॉर्मल अगर आप देखोगे किसी सॉलिड सब्सटेंस को हीट करोगे तो पहले वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा एंड देन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द गैसियस state. So this is the way how the states of matter can be converted from one form to another. Solid state can be converted into the liquid one, and on further heating the liquid state can be converted into the gaseous state. And the reverse is also possible. Okay, reverse is also possible by reversing the condition. आप क्या करोगे? पहले हमने क्या बताया आपको कि सॉलिड से आप लिक्विड में चेंज कर सकते हो, फिर लिक्विड से गैस में भी जा सकते हो। तो रिवर्स प्रोसेस भी है, बस आपको कंडीशन रिवर्स करनी पड़ेगी। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? कंडीशन को, टेम्परेचर को राइज कर रहे हैं, टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं कंटिन्यूसली, या फिर उसको कंटिन्यूसली हीट कर रहे हैं। और रिवर्स प्रोसेस में आपको जाना है तो कंडीशन रिवर्स कर दीजिए। दैट मीन्स यू विल बी डूइंग द कूलिंग प्रोसेस। आई थिंक द आइडिया इज क्लियर। प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट so that we can move to the next concept. So this is very important topic, that's why I have taken a long portion in that long time. So let's erase this, and after that we will be doing the next concept of the day, that is how the solid changes its state into the liquid form. Okay, now the next topic will be how the solid converts into the liquid form. Conversion of solid into liquid. Okay, liquid, and vice versa. I think the idea is clear to you. What is the conversion, what we are going to discuss in this article. In this we are going to discuss that how can we convert a solid into the liquid form, and how the liquid can be again reconverted into the solid form. दोनों को एक दूसरे फॉर्म में कैसे इंटरचेंज करेंगे वो देखने वाले हैं यहाँ पे। फर्स्ट हेडिंग इज मेल्टिंग. First heading will be melting. Okay, so what is melting? It is the process, write down the definition with me. It is the process in which solid gets converted into liquid on heating.
on heating. So I think melting is clear to you. What is melting? It is the process in which solid gets converted into the liquid form on heating. I have told you how can we change the state of matter? By changing two conditions. First, either we are changing the temperature, we can change the temperature, either we can change the pressure. So what we are doing over here, we are simply increasing the temperature, like, okay. So this process is called as melting. Solid converted into liquid, and that process is called as melting, and condition is on heating. How the melting happens? How melting goes on heating. अब क्या है melting? ये प्रोसेस होती है सॉलिड को लिक्विड्स में कन्वर्ट करने की. कब होता है मेल्टिंग? जब आप उसे हीट करोगे. क्लियर है? दैट मीन्स द प्रोसेस, मतलब कोई भी ऐसी प्रोसेस जिसमें हम सॉलिड्स को हीट करके लिक्विड फॉर्म में चेंज कर रहे हो, उसको हम क्या बोलते हैं? मेल्टिंग बोलते हैं. अब मैंने लिख भी दिया है, सॉलिड्स चेंजेस इनटू लिक्विड on heating, and this process is called as melting. An example you can take. For example, ice gets converted into water on heating. Converted into water on heating. Into water on heating. ओके. जब आप आइस को हीट करते हो तो फिर क्या होता है? वाटर में कन्वर्ट हो जाता है. आइस कौन सी फॉर्म होती है? आइस इज अ सॉलिड फॉर्म ऑफ द वाटर. सॉलिड फॉर्म होती है. आप उसको हीट कर रहे हो, वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? लिक्विड में. तो वो किसका एग्जाम्पल हो गया? मेल्टिंग का. तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ एग्जाम्पल. आइस एंड दिस इज वाटर, एंड हाउ इट इज कन्वर्टेड? इट इज कन्वर्टेड बाय मीन्स ऑफ मेल्ट कर देंगे हम उसको. ओके. और कैसे कर सकते हो आप मेल्ट आइस को? वाटर में सिंपली हीट करके. क्लियर है मेल्टिंग क्या होता है? कोई भी ऐसी प्रोसेस जिसमें हम सॉलिड सब्सटेंसेस को हीट करते हैं और वो लिक्विड में चेंज हो जाती हैं. ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? मेल्टिंग बोलते हैं. इज इट क्लियर? मेल्टिंग, इज इट क्लियर? बट देयर इज अ condition for melting. Whenever you are heating a solid substance, then it happens only at the particular temperature. It not happens at every temperature. ऐसा नहीं कि कोई भी चीज़ आप हीट करोगे तो तुरंत मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी. It is not possible. So we need to approach, we need to gain a certain level of temperature. एक particular temperature होता है जिस पे melting होती है. क्या बोलते हैं उसको? Next topic वही है आपका, डील करेंगे. Before that, please pause the video to make a note of it. Either you can take the screenshot. Clear? Okay. So next is melting point. Next is melting point. Melting point. Okay. What is melting point? The fixed temperature. The fixed temperature. The fixed temperature at which solid gets converted into liquid. Is called melting point. Is called melting point. Very simple definition I have written on the board. Is called melting point. Right? So what is melting point? क्या होता है melting point? जिस टेम्परेचर पे हीट करने पे सॉलिड सब्सटेंस आपका लिक्विड सब्सटेंस में चेंज हो जाए, उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं melting point. Clear? The temperature at the fixed temperature at which a solid converts into liquid form is called as melting point. Right? So we can take some example over here. Everything has its fixed melting point. So like the melting point of ice is 0 degrees Celsius. The melting point of ice is 0 degree Celsius. How much? 0 degree Celsius.
and some people are pronouncing it as 0 degree centigrade. Both are same, don't get confused among the pronunciation. It's a slip of tongue. Okay, so what is melting point? Melting point is the fixed temperature at which solid starts converting or gets converted into the liquid form. ऐसा फिक्स टेम्परेचर जिस पे सॉलिड आपका लिक्विड में चेंज हो जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे? मेल्टिंग पॉइंट बोलेंगे. ठीक है, लाइक आइस का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस. तो आइस आपका 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाती है. इज इट क्लियर? प्लीज पॉज द वीडियो टू मेक अ नोट ऑफ इट, और you can take the screenshot so that you can prepare you all the notes in the classes. आपको साथ साथ ही नोट्स बनाने हैं क्लासेस में, बार बार मैं आपको बोल रहा हूँ. ठीक है, जितना टाइम में मैं वीडियो पॉज करूँगा उतने टाइम में आप नोट्स रेडी कर लोगे, एंड आफ्टर दैट देयर इज़ नो नीड टू गो ऑन एनी अदर चैनल और एनी अदर बुक. आई विल बी टीचिंग यू ऑल द थिंग्स फ्रॉम द NCERT only. So don't get worried, I will cover each and every single topic which is given in your NCERT. Is it clear? Okay. Now what we have done, what was the article? Conversion of solid into liquid, that we have done. Now vice versa we need to do. Vice versa means the reverse process, how the liquid can be converted into the solid form. Just wait. So that process is called as freezing. What it called as? Freezing point. Sorry, freezing or solidification. So don't get confused among these two terms, both are similar. दोनों एक ही जैसे हैं, freezing और solidification. कहीं पे आप कोई solidification पूछ रहा है तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, freezing अलग होता है, solid एक ही होता है, solidification और freezing. Okay, the process in which liquid gets converted into solid state. Liquids get converted into solid state on cooling. This is the reverse process of melting. जो रिवर्स प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं? हीट करते हैं. इसमें क्या करेंगे? कूल करेंगे. So how can we interchange the state of substance from one to another? by reversing the condition. मेल्टिंग में हम लोग क्या करते थे? सब्सटेंस को हीट कर रहे थे. इसमें हम लोग क्या करेंगे? सब्सटेंस को कूल करेंगे. क्लियर? So freezing is what? The process in which liquids gets converted into the solid state on cooling. That process is called as freezing or solidification. तो कोई भी ऐसी प्रोसेस जिसमें लिक्विड्स को हम कूल डाउन करेंगे और वो आपका किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? सॉलिड फॉर्म में. सो एग्जांपल वी कैन राइट ओवर हियर. द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, sorry, the conversion of water into ice. The conversion of water into ice. तो ये क्या होता है? फ्रीजिंग का एग्जाम्पल है. वाटर इज वॉट? वाटर इज अ लिक्विड फॉर्म, एंड इफ यू आर कन्वर्टिंग इट इनटू द ice, then ice is a solid form. So there is a process, there is a conversion going on from liquid to solid on cooling. Then this process is called as freezing. Right? क्लियर हो गया freezing क्या होता है? नोट डाउन कर लीजिए. Okay, I think you have taken the screenshot, or you can pause the video to make a note of it. That will be helpful for you. Next, there is a condition now how the freezing happens. Not all at every if you are cooling down, so there is no condition happens that at every temperature cooling solid starts converting into the liquid starts converting into the solid state. ऐसा नहीं होता. आप टेम्परेचर कूल डाउन करोगे तो सारे टेम्परेचर्स पे वो हमारा जो लिक्विड है वो सॉलिड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा. उसके लिए फिक्स्ड टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है किसी भी लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करने के लिए. ओके, सो दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड एज फ्रीजिंग पॉइंट. Freezing point. What is that? The fixed temperature
temperature at which liquid, sorry, not solid, liquid gets converted into solid state, is called freezing point, okay. So what is freezing point? Freezing point is the fixed temperature at which a liquid gets converted into the solid form. कोई भी ऐसा टेम्परेचर जिसमें लिक्विड आपका सॉलिड फॉर्म में चेंज हो जाएगा, उस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। एग्जाम्पल ले सकते हो आप, अगर वाटर की बात करें तो वाटर कितने डिग्री पे फ्रीज होना स्टार्ट हो जाता है? 0 डिग्री सेल्सियस। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 0 डिग्री सेल्सियस। Point of water is 0 डिग्री सेल्सियस। ओके, मीन्स अगर आप वाटर को आइस में कन्वर्ट करना चाहते हो, मैंने आपको बताया था वाटर की सॉलिड फॉर्म क्या होती है? आइस। अगर आप वाटर को आइस में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आपको 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे मेंटेन करना पड़ेगा। जैसे ही आप 0 डिग्री सेल्सियस मेंटेन करेंगे, द वाटर स्टार्ट्स कन्वर्टिंग इनटू द आइस फॉर्म। ओके, दैट्स व्हाई इन मोस्ट ऑफ द हिली एरियाज इन द विंटर टाइम the snowfall or all the water which is present in the river bodies or the water bodies gets freezed। उसमें क्या वो सारा क्या हो जाता है? वो आपका आइस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, सो दिस इज योर कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट और पॉज द वीडियो टू नोट डाउन इन योर कॉपी। So this is all about your today's video. If you are getting any kind of help from these videos, then please hit the like button, and if you are watching the video for very first time on the channel, then please subscribe to our channel, and please share this video as much as possible so that all the students, they can take the benefit from this video. Okay, and thank you so much all of you for once again watching this complete video. Thank you.